Hello students, welcome to lecture number 21. So we will continue with 6.4. This is actually a continuation of the last lecture. So before I explain what is actually a gamma function and why do we need this concept, let us revise where were we in the last lecture, and let's revise that. So we started with Bessel's differential equation of order nu, where nu is a non-negative parameter, non-negative real number. So what does that mean? So that means this nu belongs to positive real number, plus it can also be 0. So we can say that this is a non-negative real number. It can be 0 or a positive real number. So we can easily, if you start studying this and to try to find the solution of it, if you see that by dividing x square on both sides, you will see that x equal to 0 is actually a regular singular point. So by Frobenius method and by the theorem of Frobenius, this series will provide at least one solution to this differential equation, where r is a unknown parameter to be determined from the initial equation. So उसके बाद हमने देखा था कि हमने we actually calculated the first and second derivative, inserted that back in this one, and then solved that. After solving we saw that the initial equation is r square minus nu square, and so the roots are plus nu and minus nu. Since nu is greater than or equal to 0, so our two initial roots were r1, which is nu, and r2 minus nu. So of course this r1 is greater than r2 because this is the negative multiple of this r1, and this is actually a non-negative real number. It can never be negative, so that means this will always be greater than this one. So that means that is the reason we assigned this nu to r1 and minus nu to r2. So this is our first initial root, and this is the second initial root. These were obtained from initial equation. इंडिशियल इक्वेशन क्या थी आपकी? r square minus nu square is equal to 0. So from here we got these two. और फिर हमने इसके corresponding जो ना ये वाला solution calculate करना start किया. r1 is equal to positive nu. हम यहाँ पे पहुँचे since nu is greater than or equal to 0. So if that means from this equation we can say that this part can never be 0, because if this equals to 0, because their product is 0, so one of them must be 0. So if this is 0, then nu is minus 1 over 2, but nu is positive, so nu cannot be minus 1 over 2. So that means this cannot be 0, C1 must be 0. And second, what we get, this was the recurrence relation which we got, and this is the recurrence relation, and k was starting from 0, 1, 2 and so on. Why? क्योंकि हमने उनके समीशंस को सेम करना होता है अल्टीमेटली, राइट, इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट. अगर हम इसमें 0 इंसर्ट करेंगे तो C2 की वैल्यू आ जाएगी, 1 इंसर्ट करेंगे तो C3 की वैल्यू आ जाएगी. तो उसके आपके पास जो अगर 0 इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे C0 आ जाएगा, अगर 1 इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे C1 आ जाएगा. लेकिन यहाँ से तो हमें मिला है कि आपके पास C1 0 होना चाहिए. वाई? बिकॉज दिस कैन नॉट बी 0, बिकॉज न्यू इज़ नॉन नेगेटिव, it can never be minus 1 over 2. So if C1 is 0, when you insert it back here, you get for C3, if you put k value of k is 1, this becomes C3 and this becomes C1. C1 is 0, so this becomes 0, so C3 is also 0. If you put 3, this becomes 5, this becomes C3, so C3 was 0, so this also becomes 0. So that means if C1 is 0 in this recurrence relation, all the odd इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स विल बी 0, राइट. तो आपके पास बाकी कौन से बचेंगे? जो 0 बचेगा और बाकी इवन ऑर्डर्स बच जाएंगे. तो चूँकि हमने अब इसमें जो ऑड 3 है उसको भी मिस करना है, 1 को भी मिस करना है, 5 को भी मिस करना है, तो रादर देन डूइंग दिस, व्हाई डोंट वी रिप्लेस दिस k plus 2 विद न्यू रिकरेंस रिलेशन k plus 2 is equal to 2n, and then n will start from 1, 2, 3 and so on. अब यहाँ पे अगर आप n is equal to 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा. यहाँ पे आपके पास जो कंटिन्यूशन है
इस पैरामीटर की वैल्यूज़ की, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूशन नहीं थी. सो दैट इज़ द रीज़न वी रिप्लेस दिस k + 2 with 2n, बिकॉज दिस इज़ फॉर एवरी this represents all the even integers. So we can replace this with this 2n, because this also will give ultimately all the even integers. So c2n, this becomes k becomes from here k is 2n minus 2, and k plus 2, what does k plus 2 becomes? This becomes 2n, and k plus 2 times nu, k plus 2 is 2n. From here to you can take 2 common, and 2 कॉमन करने के बाद जो वो बाहर आएगा parentheses के, तो आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा. So this was the relation which we got from the last lecture. So I have explained it all about it, the history of this differential equation, what we did in the last lecture about it. So उसके बाद हम क्या करते थे? उसके बाद हम ये करते थे कि आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो रिकरेंस रिलेशन आता था उसमें ये वाली जो वैल्यू थी पैरामीटर की n = 1, 2, 3 इनको इंसर्ट करते थे, और फिर हम देखते थे कि हमें कोएफिशिएंट की वैल्यू जो हमने अल्टीमेटली यहाँ पे पुट करना है तो वो कैलकुलेट करेंगे. तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे चूँकि अब हमने ऑड पावर्स नहीं लेनी, तो आप इस जो हमारी सीरीज सोल्यूशन था उसको रिप्लेस कर सकते हैं n = 0 to infinity c2n x2n plus r, where r was this new initial root, right? So 2n plus new. तो इन व्यू ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन अब आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज थी वो ये वाली बन जाएगी, क्योंकि ऑड पावर्स सारी जीरो हो जाएंगी, बिकॉज ऑड कोएफिशिएंट्स आर जीरो, राइट? सो ओनली इवन कोएफिशिएंट्स कम, एंड दिस विल गिव ओनली इवन कोएफिशिएंट्स. And since we were calculating this corresponding to the first initial root, so this is the first initial root. So now this is our revised series solution. Now we need to calculate the value of this c2n, then we will be able to calculate the solution of it. So let's move on and see what we have for this. From this what we do is कि आपने अब n = 1, 2, 3 की वैल्यू पुट करके इसको देखना कि हमारा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, राइट? So here if we consider n = 1, what we get is c2, and here what we get is 1, 2 minus 2, c0, right? So c2, this is c0, and from here 2 to the power 2, n is 1, 1 plus nu, and then this for the second value of n, we get here c4 and here c2, and from here 2 power square 2 times 2 plus nu. एंड जब आप c2 की जो वैल्यू है वो बैक इंसर्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो c0 की जगह पे c2 की जगह पे c0 आ जाएगा, एंड 1 + 2 के साथ 2 + nu भी आ जाएगा, और ये 1 ये 2 और 2 की पावर ये और 2 की पावर 2 ये 4 हो जाएगा, और ये माइनस ये वाला माइनस पॉजिटिव हो जाएगा. एंड कंटिन्यूइंग दिस वे, ऐसी तरह आपके पास यहाँ से, तो इसका मतलब है कि जब आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग ये c2n आएगा तो यहाँ पे 2 की पावर 2n आ जाएगा, साथ में 1 2 3 फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल आ जाएगा. अगर यहाँ पे 2n है तो इसके हाफ का फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा, सो इसका मतलब है कि n फैक्टोरियल आ गया. ये अगर c6 है तो ये 3 तक जा रहा है, और इसका मतलब है कि हाफ पावर तक ये भी आगे कंटिन्यू होंगे. सो 1 + nu, 2 + nu, 3 + nu, 4 + nu, so on n + nu. Why? Because for 6 it is up to 3, for 4 it is up to 4, right? And for 2 it is up to 2. So आपने 2n को 2 पे डिवाइड करने के बाद आपने इसकी सीरीज़ को कंटिन्यू करना है. तो n = 1, 2, 3 so on. तो ये आपके पास इसमें c0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. अब आपके पास हमने देखना ये है कि बेसल्स इक्वेशन, जिस तरह हमने लेजेंडर इक्वेशन में जो कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर से उनकी वैल्यूज़ लेजेंडर ने खुद साइन की थी, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें लेजेंडर्स पॉलिनोमियल मिल गए. यहाँ पे भी सिंस वी आर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, वी आर नॉट डेवलपिंग अ मेथड फॉर जनरल area of differential equations, so we can insert some specific constant rather than considering any arbitrary constant, right? तो बेसल्स ने यहाँ पे c0 का जो कोएफिशिएंट है, जिस तरह लेजेंडर ने पर्टिकुलर कोएफिशिएंट्स साइन किए थे, c0 यहाँ पे एक ही आ रहा है, वहाँ पे 2 आ रहे थे, तो यहाँ पे c0 की वैल्यू जो बेसल्स ने कंसिडर की थी वो इन टर्म्स ऑफ गैमा फंक्शन थी. क्योंकि वो हम जब गैमा फंक्शन इंसर्ट करेंगे तो ये नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है, सो ये हमें एक कम्पैक्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ गैमा फंक्शन. सो दैट इज़ द रीज़न वी नीड गैमा फंक्शन. सो लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट वी हैव फॉर द गैमा फंक्शन. So here we have the definition of proper definition of gamma function.
So the gamma function is actually a function from positive real numbers to real numbers. So that means the input can only be positive real number. It can never be 0, it can never be negative. And it is defined as like this: 0 to infinity e की power minus t और t की power nu minus 1 dt. So certainly since the map runs from positive real numbers to negative real numbers, so that means this nu can never be 0 and can never be negative. So nu must be greater than 0. So अगर आप इसको थोड़ा सा कन्वीनियंट नोटेशन में लिखेंगे तो आप यहाँ पे अगर न्यू वन माइनस वन की जगह पे न्यू रख लें, तो न्यू की जगह पे अगर आप न्यू प्लस वन रिप्लेस कर देंगे तो ये हमें न्यू की जगह न्यू प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे न्यू आ जाएगा, तो वो आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी. सो द गैमा फंक्शन अगर न्यू के लिए ये है तो न्यू प्लस वन के लिए ये होगा, वेयर न्यू इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर टेकिंग फ्रॉम द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, राइट. तो अब यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि हमें न्यू की वैल्यू ग्रेटर दैन माइनस वन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप -0.5 भी रखते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगी. -1 भी नहीं होना चाहिए और -1 से ग्रेटर भी नहीं होने चाहिए, सॉरी लेस भी नहीं होने चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए. सो -1, 0, 1, 2 ये सारे ओके हैं. सो वी ट्रांसफॉर्म दिस फंक्शन टू दिस फंक्शन जस्ट बिकॉज वी वांट दिस पावर -1 v-1 टू v. new -1, replace new -1 with new. So how did we do it? We replaced new with new plus 1. तो जब आप new की जगह पे new plus 1 रखेंगे तो यहाँ पे new plus 1 greater than 0 आ जाएगा, so new greater than -1. तो यहाँ से हमें ये कंडीशन मिल जाएगी, तो यहाँ पे new plus 1 से ये वाला कैंसिल आउट होकर new आ जाएगा और यहाँ पे new plus 1 आ जाएगा. So why did we consider actually new plus 1? The first reason is we wanted this power of t to be a whole number, not plus 1 or -1. The second reason is here, so when we solve this gamma function, because this is an integral, improper integral, so we can easily solve it. So since it's an improper integral, we can easily solve it by considering this polynomial. This is actually polynomial in nu, so we can consider this as our first function and this is our second function. So first function as it is integral of integral of second minus इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या आ जाएगा, न्यू टी न्यू -1, न्यू बाहर आ जाएगा, e की पावर -t एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रल हमने देखना है, और ये वाला माइनस और इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला माइनस वो प्लस हो जाएगा. तो ये तो हमें 0 देगा. वाई? बिकॉज जब हम t की विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट किया, राइट. तो जब हम t की जगह पे इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/e की पावर t, तो 1 समथिंग बिगर अप्रोचेस टू 0, सो दिस अप्रोचेस टू 0, राइट. और सिमिलरली जब आप ये रखेंगे तो ये आपके पास जब 0 रखेंगे तो ये जो पार्ट है वो हमें 1 दे देगा, e की पावर 0 1, लेकिन ये वाला पार्ट 0 दे देगा. 0 की पावर सम फाइनाइट नंबर इज़ एक्चुअली a 0. फॉर एग्जांपल 0 की पावर 2 0, 0 की पावर 3, 0 को स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 0 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को 4 दफ़ा n दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा. तो इसलिए न्यू टाइम्स 0 को मल्टीप्लाई करने से भी 0 आएगा. सो दिस पार्ट विल ऑलवेज 0 ईदर फॉर t is equal to infinity or t is equal to 0. So this part will always go to 0, and here we get new times this one, and if you see that this integral is equal to gamma of nu, so that means 0 plus gamma times nu. So gamma of nu plus 1 is equal to this is actually the property which we will use, कि अगर आप न्यू प्लस 1 पे अगर गैमा अप्लाई करेंगे तो वो न्यू टाइम्स गैमा प्लस न्यू आ जाएगा फ्रॉम दिस फंक्शन. सो हमने डिफाइन न्यू के लिए किया था. सो फर्स्ट रीज़न वाज कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी इंश्योर करवानी थी, दैट इज़ द रीज़न वी कंसिडर्ड न्यू प्लस 1 रादर दैन कंसिडरिंग न्यू हियर. और सेकंड ये है कि हमें उसकी यहाँ पे न्यू की जगह न्यू -1 की जगह पे न्यू चाहिए था. तो कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन ये चेंज हो गई बिकॉज दिस वाज अ पॉजिटिव नंबर. सो व्हेन वी रिप्लेस दिस यू विल गेट दिस new greater than -1, and here we get this important property. So let's call it the star property. It says that whenever you apply it to a positive integer plus 1, you will get gamma function of that positive integer times that positive integer. ठीक है जी. सॉरी इंटीजर नहीं, रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे ये रियल नंबर हो सकता है. अच्छा, अब अगर देखें कि अगर हम इस पर अगर 1 अप्लाई करें, अगर यहाँ पे गामा 0 करें तो न्यू 0 करें तो न्यू 0 पे क्या आता है, अगर देखते हैं थोड़ा सा, न्यू 0 अगर करें तो यहाँ पे गामा 1 आ जाएगा. तो जो है यहाँ ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये तो इस गामा न्यू की वजह से सारा 0 हो जाएगा, राइट. ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा इसकी वजह से न्यू इज इक्वल टू 0 पे. और यहाँ पे हमें
अब जो है वो हमें क्या कहते हैं, जब e की पावर 0 1 हो जाएगा तो सिर्फ t की पावर 0 रह जाएगा। तो 0 की पावर ये समथिंग ये इक्वल टू 0, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे 0 आएगा, जब 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई मेंट कि जब यहाँ पे न्यू की जगह 1 आ जाएगा तो ये न्यू 0 होने से ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और e की पावर t अब अगर आप एज इट इज़ रहने देंगे और जब e की पावर t पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने इसका इंटीग्रल आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस टी, इन्फिनिटी पुट करने से 0 आएगा, माइनस 0 पुट करने से माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस और ये वाला माइनस, इंटीग्रेशन वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है ये दोनों आपके पास प्लस 1 दे देगा। इसका मतलब गामा 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर आप कंटिन्यू करेंगे इसको तो आपके पास नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए क्या बनेगा, 1 2 और 3 के लिए क्या हमें गामा फंक्शन देगा। वी आर एक्चुअली स्टडिंग द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स, कि इंटीजर्स के लिए हमें गामा फंक्शन क्या प्रोड्यूस करता है। सो व्हेन गामा 2 इज़ नाउ, अब यहाँ पे हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। यहाँ गामा 1 रखते हैं, गामा 0 यहाँ पे रिप्लेस करके 1 कैलकुलेट कर लिया। अब न्यू इज इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये 1 टाइम्स न्यू gamma of 1 आ जाएगा। gamma of 1 is 1, so that means gamma of 2 is actually 1 factorial। उसको 1 कह लें या 1 कह लें, ठीक है जी। 1 times gamma 1 which is actually 1, so this is 1 factorial। and if you replace 2 you get gamma 3 here, 2 gamma 2, 2 times gamma, sorry, if you replace this with 2 you get 2 times gamma 2 and where gamma 2 is 1, so 2 times gamma 1 और gamma 2 which is actually 1, so ये हमें 2 फैक्टोरियल दे देगा। इसी तरह आप इसमें रिप्लेस करते जाएंगे और पिछली वैल्यू इंसर्ट करते जाएंगे तो आपको 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इस तरह वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, बिकॉज आपने पिछली वैल्यूज़ को आगे यूज़ करना होता है। 2 times 1 फैक्टोरियल इज़ 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल टाइम्स 3 times 2 फैक्टोरियल इज़ एक्चुअली 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपके पास इसका मतलब n इज इक्वल टू 0 1 एंड सो ऑन के लिए हमें जो गामा फंक्शन है वो फैक्टोरियल फंक्शन दे देता है। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल फंक्शन इज़ ओनली फॉर दीज वैल्यूज 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, बट गामा फंक्शन इज़ द सिमिलर फंक्शन विच एक्चुअली गोज फ्रॉम अ पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, यहाँ पे आपके पास 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये इंटीजर्स के लिए है, ये जनरली आपके पास पॉजिटिव क्या कहते हैं रियल नंबर्स के लिए। और जब हम इसी फंक्शन को इंटीजर्स के लिए कंसिडर किया तो हमें बैक फैक्टोरियल फंक्शन मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि द फैक्टोरियल फंक्शन एक्चुअली जनरलाइजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ द गामा फंक्शन, जनरलाइजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन। So this is exactly what I said. Hence the gamma function generalizes the factorial function to arbitrary positive। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 और पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ पे आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। सो गामा फंक्शन जो है वो फैक्टोरियल फंक्शन को जनरलाइज करता है अप टू एनी आर्बिट्रेरी रियल कांस्टेंट, रियल पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है जी। तो नेक्स्ट नाउ वी वांट टू यूज़ दिस गामा फंक्शन हियर कि अब सी नॉट की जो चॉइस ली थी आपने बेसल्स ने, वो इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन थी। व्हाट वाज दैट? सो बेसल्स चॉइस वाज फॉर सी नॉट वाज दिस 1/2 की टाइम्स न्यू विच इज़ आवर फर्स्ट इंडिशियल रूट r इज इक्वल टू न्यू, दिस वन विच, सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वन वी आर कैलकुलेटिंग दिस सोल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कि हम बेसिकली इस इंडिशियल रूट के कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं फ़िलहाल। तो ये है कि सी नॉट की हमें चॉइस ये मिल रही है 1/2 की पावर न्यू गामा ऑफ 1 प्लस न्यू। अब अगर हम ये वाली इंसर्ट करते हैं यहाँ पे वैल्यू तो हमें फ़ायदा क्या मिलता है वो हम देखते हैं कि ये वाली वैल्यू इंसर्ट करने से हमें बेसिकली फॉर्म कौन सी जनरेट होती है। और हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे वो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे गामा फंक्शन की, ये वाली कि गामा ऑफ न्यू प्लस 1 इज इक्वल टू न्यू टाइम्स गामा ऑफ न्यू, ठीक है जी। यहाँ पे तो न्यू कोई आर्बिट्रेरी कोई भी रियल नंबर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ का जो न्यू है वो बेसिकली आपका इंडिशियल रूट है। तो ये जो न्यू है ये बेसिकली गामा फंक्शन का कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता था। सो इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है इस न्यू का इस न्यू से, जस्ट लेकिन यह कि रिलेशन
जस्ट ये इसलिए मैंने वो सेम पैरामीटर यूज़ किया क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो न्यू था वो भी नॉन नेगेटिव था, यहाँ पे भी आपके पास न्यू नॉन नेगेटिव हो सकता है, तो ये रीज़न थी. So what we get for this choice of Bessel's C0, Bessel's choice for C0. So this is what we have so far. So C2 n आपने कोएफिशिएंट्स की वैल्यू ये वाली कैलकुलेट की थी, राइट. उसके बाद C0 की बेसल की चॉइस ये थी. अच्छा, उसके बाद जब हम ये वाली इंसर्ट करेंगे तो हम इसमें जो गामा की स्टार प्रॉपर्टी थी उसको हम यूज़ करेंगे, और वो आपके पास प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमारे पास ये ऊपर वाला 6 जो है वो सिंप्लीफाइड क्या हो जाएगा, वो इस तरह सिंप्लीफाइड हो जाएगा. So if you apply this, our property was if you apply the gamma function on 1 plus nu, what you get is nu times gamma of nu. So if you consider this whole nu, so that means 1 plus nu, तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, this times gamma of this. So this times gamma of this. इसी तरह अगर आप 1 plus 2 पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 plus न्यू टाइम्स गैमा 2 plus न्यू, और गैमा 2 plus न्यू की हमने वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की हुई है. दिस इज एक्चुअली आल्सो इक्वल टू गैमा ऑफ 2, राइट. गैमा 2 plus, सो इसकी जब आप बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 plus न्यू 1 plus न्यू गैमा ऑफ 1 plus न्यू. तो इसका मतलब है कि अगर आप इसी तरह अगर आप 3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 plus न्यू 2 plus न्यू 1 plus न्यू, और यहाँ पे गैमा 1 plus न्यू, और इसी तरह करते जाएंगे तो गैमा की 1 plus न्यू प्लस एन की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी n plus न्यू n minus 1 plus न्यू, 3 plus न्यू 2 plus न्यू 1 plus न्यू, और उसके बाद गैमा ऑफ 1 plus न्यू. ठीक है जी. तो सबसे पहले तो जब C0 की चॉइस हमने यहाँ पे इंसर्ट की तो हमारे पास वैल्यू ये आ गई, राइट. C0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 over this one. सो t 2 power v will add up to this one. सो 2 power 2n plus न्यू बन जाएगा. ये n फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा, ये वाला फैक्टर एज इट इज़ रहेगा, और ये गैमा ऑफ 1 plus न्यू इसमें एड अप हो जाएगा. अभी हमने ये देखा है कि ये वाला जो सारा फैक्टर है ये किसके इक्वल है, गैमा ऑफ 1 plus न्यू प्लस n बाय यूजिंग दिस स्टार प्रॉपर्टी. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, we just use this property. So you can easily see that if this goes up to n, 1 plus nu plus 3 and so on n, what you get is आपने 3 के लिए 3 plus nu 2 plus nu 1 plus nu, तो n के लिए क्या आएगा, n plus nu n plus n minus 1 plus nu and so on, 2 plus nu 1 plus nu, और साथ में गैमा 1 plus nu. तो इसका मतलब ये वाला जो सारा फैक्टर है ये आपके पास ये वाला फैक्टर है, और ये रीज़न थी जिसकी वजह से हमने गामा फंक्शन का यूज़ किया है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो सो ऑन था, ये सो ऑन अब ख़त्म हो गया, कम्पैक्ट गामा फंक्शन आपके पास ये वाला आ गया है. अब आपको अगर याद हो कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप C2n की आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब C2n की जब हमने यहाँ पे इंसर्ट करनी है अपनी रिवाइज्ड लिस्ट में, अपनी रिवाइज्ड सीरीज़ में, तो आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बेसिकली आपके पास वैल्यू जो आएगी कि ये x की पावर 2n plus v आ जाएगा. अच्छा, ये x की पावर 2n plus v और नीचे वाला ये 2 की n plus v, ये तो आपको क्या दे देगा, x over 2 की पावर 2n plus न्यू, सॉरी v नहीं न्यू, एंड C2n की वैल्यू फिर बाकी ये वाली ये एज इट इज़ आ जाएगी, और यहाँ पे आपके पास समीशन आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी, राइट. तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास y की जो सोल्यूशन हमें मिला है वो आपके पास ये वाला मिला है, समीशन -1 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल गामा ऑफ दिस फंक्शन प्लस x ओवर 2 की पावर, ये वाला 2 पावर 2n प्लस v और ये वाला 2n प्लस v, ये मिल के आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई. तो अब आपके पास ये वाला सोल्यूशन आ गया. अब ये जो है ये बेसिकली जो है ये आपके पास जो है गैमा, ये इसको आप एक न्यू फंक्शन का नाम दे लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन actually this is a power series, but this is also a function as well, right. Why it is a function, because whenever it will converge to a function, और वो जो फंक्शन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसको क्या कहेंगे, बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड. तो ये आपके पास जो फंक्शन है ये सारा का सारा ये बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड. सो लेट मी डिफाइन इट प्रिसाइजली फॉर यू. सो दिस इज़ आई जस्ट टोल्ड यू बेसल फंक्शंस ऑफ फर्स्ट काइंड. इसी तरह लेजेंडर पोलिनोमियल्स भी इसी तरह लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन से अपीयर हुए थे. यहाँ से भी बेसल फंक्शन ऑल्सो राइजेज फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमने इस सारे पार्ट को जो है वो हमने बेसल फंक्शन का नाम दिया, -1 की पावर n फैक्टोरियल गैमा 1 प्लस न्यू प्लस n x ओवर 2 की पावर
2n plus v. This is actually called Bessel's function of first kind and denoted by j of order nu, j nu of x. ठीक है, तो अगर 1/2 हो जाएगा तो जहाँ जहाँ पे न्यू है वहाँ पे 1/2 हो जाएगा, जहाँ पे 2 है -2 है, इसी तरह ये आपके पास फंक्शन आ जाएगा, कारस्पॉन्डिंग एक सीरीज़ आ जाएगी, उस सीरीज़ जो सीरीज़ है उसका सम होगा जिसको वो कन्वर्ज करेगी, वो सम आपके पास बेसल फंक्शन आएगा. सो वेयर विल इट कन्वर्ज, लेट्स सी कि आपके पास ये क्या कन्वर्ज करती भी है कि नहीं. तो ये बेसिकली ऑलवेज कन्वर्ज करती है, और मैंने इसकी वैल्यू आप इस पर सिंपली क्या अप्लाई करेंगे, रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे. तो रेशो टेस्ट अप्लाई करने के बाद जब आप ये वाली वैल्यू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये an+1 ओवर an अप्लाई करेंगे, तो ये बेसिकली आपके पास जो वैल्यू आएगी आएगी x/2 स्क्वायर. मैंने ये सिंप्लीफाइड वर्जन लिख रहा हूँ, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपके पास ये वाली आएगी n+1 एंड n+1 प्लस न्यू. Since this is a squared, this is a quadratic polynomial in n, so if we consider n approaches to infinity, so this whole function goes up to 0. तो इसका मतलब है कि ये always 0 को कन्वर्ज करेगा. तो इसका मतलब है कि इसका जो आपके पास जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपके पास ये सारी की सारी रियल लाइन है, राइट. अच्छा, अगर आपको याद हो हमने ये वाला जो सोल्यूशन कैलकुलेट किया था, ये हम स्टार्ट लिया था हमने इंडिसल रूट से, इंडिसल रूट हो पहले इंडिसल रूट से, राइट. सो व्हाट हैपन्स इफ़ वी फाइंड corresponding, if we repeat all these calculations corresponding to the second इंडिसल रूट which is actually माइनस न्यू, राइट. तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सारी की सारी ये चीज़ें चेंज होने के बाद जो आपके पास आएगा वो आपके पास वैल्यू ये वाली आ जाएगी. जहाँ जहाँ सिर्फ सॉरी तो अब आपके पास जहाँ जहाँ पे सिर्फ न्यू प्लस था, अब आपके पास R2 = -2 सेकंड इंडिसल रूट के कारस्पॉन्डिंग जो आपको ये सारी कैलकुलेशन रिपीट होने के बाद जो मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस न्यू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस न्यू आ जाएगा, और सिर्फ यहाँ पे माइनस न्यू आ जाएगा. तो इसका मतलब कारस्पॉन्डिंग जो आपका बेसल फंक्शन बन जाएगा वो सिर्फ जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. सो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास कि दिस इज़ कारस्पॉन्डिंग टू R1 = न्यू फर्स्ट इंडिसल रूट एंड दिस इज़ कारस्पॉन्डिंग टू R2 = माइनस न्यू सेकंड इंडिसल रूट. तो ये दो आपके पास सॉल्यूशंस आ गए, राइट, ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन. सो सुपरपोजिशन इसकी आपके पास जो था इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वो ये है. यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक एम्बिग्युइटी है, वो ये है कि अगर आप x की वैल्यू को अगर जो न्यू है वो अगर लार्ज इनफ हो जाता है, राइट, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए तो ये वाली जो क्वांटिटी ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन ये नेगेटिव हो सकती है. अगर 2n से अगर न्यू जो है वो 2n से बड़ा हो जाएगा तो 2n माइनस न्यू जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि इफ़ न्यू इज़ ग्रेटर दैन 2n then 2n minus nu will be less than 0, right? If it is less than 0 that means this is negative. और अगर आप यहाँ पे ज़ीरो ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो ये तो 1/something ये नीचे चली जाएगी पावर, नीचे ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी. जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो सम 1/0 ये अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर देगा. तो कहने का मतलब है कि ये वाली जो सीरीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ x = 0 के लिए कन्वर्ज नहीं करती, अदरवाइज़ ये पूरी की पूरी रियल लाइन पे कन्वर्ज करती है. क्योंकि x = 0 लेंगे तो जब आपके पास न्यू बड़ा हो जाएगा 2n से तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नीचे ये 1/x हो जाएगा, और जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर देगा. तो ये वाली जो सीरीज़ है ये आपके पास पूरी की पूरी रियल लाइन को कन्वर्ज कर रही है, और ये वाली जो है पूरी की पूरी रियल लाइन एक्सेप्ट 0 को कन्वर्ज कर रही है. ठीक है, और ये कारस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट इंडिसल रूट है, ये कारस्पॉन्डिंग टू सेकंड इंडिसल रूट है. So now, what does superposition principle say? That for a second order homogeneous differential equation, here is one particular solution, here is second particular solution. As long as they are linearly independent, if
एज लॉन्ग एज देयर, ये नॉन प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ना हो या लीनियरली इंडिपेंडेंट हों या डिपेंड ना करें एक दूसरे के ऊपर। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो C1y1 प्लस C2y2 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि हमने तो बेसल इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। एज लॉन्ग एज दीज टू बेसल फंक्शंस ऑफ फर्स्ट काइंड आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। द आंसर इज नो। वाई? व्हेन यू कंसीडर न्यू इज इक्वल टू 0। अगर आप न्यू को 0 कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, इफ़ न्यू इज 0, यहाँ ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे गामा 1 प्लस एन, उधर से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो गामा 1 प्लस एन एक्स की पावर x/2 की पावर 2n, x/2 की पावर 2n। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि फॉर न्यू इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये दोनों बेसल फंक्शन फर्स्ट फाइंड सेम हो जाते हैं। तो जब सेम हो गए तो इसका मतलब है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहे, वो तो एक दूसरे के सेम हो गए, स्केलर मल्टीपल हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। तो इसका मतलब हुआ कि एटलीस्ट न्यू इज इक्वल टू 0 के लिए तो ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन और किन वैल्यू के लिए नहीं है और किन वैल्यू के लिए हैं, ये हमें अब थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। इंडिशियल इक्वेशन का अगर आपको याद हो, हमने एनालिसिस किया था कि व्हेन एवर R1 माइनस R2 इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर दीज टू सोल्यूशंस विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, और हमें दोनों सोल्यूशन फॉरबीनियस मेथड देगा। बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर वी आर अप्लाइंग फॉरबीनियस मेथड। तो फॉरबीनियस मेथड की अब जो हमने एनालिसिस किया था कि कब दोनों, अगर दो सोल्यूशन आ जाते हैं, अगर वो कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, हम इंडिशियल रूट को देख के ही बता सकते हैं, हमें ये सोल्यूशन तक जाना ही नहीं पड़ेगा। So that was a very positive point of the Frobenius series. So let's move on to that and see what happened when we discuss that part of R1 minus R2. So this is the analysis I was talking about, कि आप इंडिशियल रूट को देख के बता सकते हैं कि कारस्पॉन्डिंग जो आपको दो सोल्यूशंस मिलेंगे, आपको कितने सोल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलेंगे Frobenius मेथड से। So the case first was when the difference of R1 where R1 is greater than R2, R1 माइनस R2 इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो आपको एग्जैक्टली दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलेंगे जो आपको बेसल्स ही प्रोवाइड करेगा, राइट। सो हमारा अगर आपको याद हो कि R1 और R2 क्या थे, सो हमारा R1 जो था वो न्यू था और R2 जो था वो माइनस न्यू था। सो R1 माइनस R2 आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू, सो 2 न्यू। सो अब हमने देखना है कि न्यू की किन वैल्यू के लिए आपके पास ये जो डिफरेंस, ये जो 2 न्यू है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अगर तो ये पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो हम इस केस में होंगे, केस 2 में, और अगर वो पॉजिटिव इंटीजर ना आया तो हम इस केस में होंगे। तो इसका मतलब है कि एज लॉन्ग एज 2 न्यू इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलेंगे, और हमारे जो ये कारस्पॉन्डिंग दो जे न्यू और जे माइनस न्यू होंगे, ये आपके पास प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रोपोर्शनल हो सकते हैं कि व्हेन एवर R1 माइनस R2 इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। लेकिन हमें ये कारस्पॉन्डिंग ये वाला जो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसमें C0 भी हो सकता है। हमें सिर्फ ये एक सोल्यूशन इंश्योर होगा फॉरबीनियस मेथड से। ये हमें फॉरबीनियस मेथड नहीं देगा, ये कोई और मेथड देगा। सिंस वी आर एक्चुअली इन द फॉरबीनियस मेथड, सो दैट मीन्स इन दिस केस आवर जे न्यू एक्स माइट बी प्रोपोर्शनल, माइट बी लीनियरली डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं लेकिन डिपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन जो है ना वो हमें सोल्यूशन उसने एग्जिस्ट करवाया था, इंश्योर करवाया था फॉरबीनियस ने, राइट, फॉरबीनियस मेथड ने। तो यहाँ पे इस केस में तो हमें 2 मिल जाएंगे, इस केस में हमें एक तो मिलेगा लेकिन 2 भी मिल सकते हैं। सो इसमें आपके पास ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जब दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे, वो कब होंगे, ये दोनों रूट कब इक्वल होंगे, जब वो आपके पास न्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो आपके पास जो जे न्यू ऑफ एक्स हमने अभी देखा था कि जे माइनस न्यू ऑफ एक्स जो है वो ऑफकोर्स दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये इस केस को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, क्योंकि आपके पास इक्वल हमारे दोनों रूट सिर्फ तब आएंगे जब न्यू 0 होगा। और जब व्हेनेवर न्यू इज़ 0, बोथ द बेसल फंक्शन J0 एंड J-0 जो हैं वो सेम हो जाएंगे। सो इसका मतलब है कि दिस इज़ एक्चुअली इन दिस केस आवर जे न्यू ऑफ एक्स इज़ एक्चुअली लीनियरली डिपेंडेंट। ये तो क्लियरली लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है,
इस केस में आपके पास ये केस में हमें एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे और इस केस में मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, ठीक है। तो इसमें हमें नहीं मिलेंगे क्लियरली, बिकॉज हमने देख लिया कि हमारे कारस्पॉन्डिंग सोल्यूशन ही सेम है। इसमें यस 2 मिलेंगे, इसमें माइट बी यस, माइट बी नो। एज लॉन्ग एज 2 न्यू इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, हमें 2 सोल्यूशन मिलेंगे। तो अब हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास 2 न्यू जो है वो कब पॉजिटिव इंटीजर देगा। एक तो ये है कि अगर हमने 2 न्यू की जगह पे कोई पॉजिटिव इंटीजर रख दिया, कोई भी, क्योंकि न्यू जो था वो बेसिकली क्या था, वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 था, राइट। अब ये पॉजिटिव इंटीजर कब आएगा, जब यहाँ पे न्यू की जगह पे कोई भी इंटीजर आ जाएगा। 2 × 1 2 विच इज़ आल्सो इंटीजर, 2 × 3 विच इज़ आल्सो एन इंटीजर। तो नेगेटिव हम जा नहीं सकते, पॉजिटिव पे रहेंगे। 0 पे तो हमने देख लिया कि क्या बनता है। अब हमने सिर्फ 2 3 4 5 6 7 अगर ये पुट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर देगा। तो इसका मतलब हुआ कि व्हेन एवर न्यू इज इक्वल टू m, जे m ऑफ x प्रोपोर्शनल हो जाएगा j माइनस m ऑफ x के, और ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमें जो ये कारस्पॉन्डिंग सोल्यूशन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, ये हमें दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो बेसिस नहीं बनाएंगे, बेसिस नहीं बनाएंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें सोल्यूशन नहीं देगा। सो और कब हमें जो ना ये इसके एक तो ये हुआ कि हम ये वाला हमें जो है सोल्यूशन एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि व्हेन एवर न्यू इज़ 0 के लिए भी हम कर लेते हैं व्हेन एवर न्यू इज़ 0 और पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि न्यू जो बाई डेफिनेशन जो न्यू था वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था, कोई रियल पॉजिटिव रियल नंबर था या नॉन एक्टिव रियल नंबर था, राइट। तो अगर 0 करेंगे तो सेम आते हैं, अगर इंटीजर रखेंगे तो ये 2 न्यू जो है वो आपके पास इस केस में आ जाते हैं हम। तो हो सकता है कि दो लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हमें ना मिले, तो इस केस में हमें डाउट है। तो लेकिन ये है कि अगर हम यहाँ पे और कब हमें ये 2 न्यू इंटीजर देगा, अगर हम यहाँ पे 3/2 रख लेते हैं तो फिर भी हमें ये इंटीजर देगा। अगर 5/2 रख लेते हैं ये फिर भी इंटीजर देगा। तो ये जो आपके पास ऑड हाफ इंटीजर्स हैं ना, जो ऑड हाफ इंटीजर्स हैं, इसको हम ऑड हाफ इंटीजर्स कहेंगे। 1/2 3/2 5/2 ये भी हमें इंटीजर्स देंगे। लेकिन इस केस में हम अभी शो करेंगे कि आपके पास ये जो हाफ ऑड इंटीजर्स हैं, इसमें इस केस में आपके पास हम ये शो कर सकते हैं कि आपके पास ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट इस केस में हो गए तो आप इसके अलावा और कोई ऐसा केस नहीं बचता जिस केस में 2 न्यू जो है वो आपको इंटीजर देगा। सिर्फ यही 2 केसेस होंगे, व्हेन एवर न्यू इज़ इंटीजर और ऑड हाफ इंटीजर्स, ऑड ऑफ हाफ इंटीजर। हाफ इंटीजर का मतलब है कि इंटीजर का हाफ, तो ऑड हों और ऑड हाफ इंटीजर्स हों तो फिर भी हमें ये इंटीजर देगा। इसके अलावा 2 न्यू हमें कभी भी इंटीजर नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि फिर हम इस केस में होंगे। तो इस केस में कब होंगे, जब इंटीजर आ जाएगा और जब ऑड हाफ इंटीजर्स होंगे। तो इंटीजर्स को तो हम बाद में डील करेंगे, लेकिन ये जो ऑड हाफ इंटीजर्स हैं इस केस में हम शो करेंगे कि हमें इस केस की बजाय हमें इस केस में आ जाएंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू शो दैट कि अभी तक हमने ये शो किया है कि ये जो जे न्यू और जे माइनस न्यू है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होंगे जब वो आपके पास जो है व्हेन एवर न्यू इज़ नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर या 0, ये यूनियन है, ठीक है। ना पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ना 0 होना चाहिए। उस केस में आपके पास ये हो सकता है दोनों जो ना लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएं। लेकिन ये है कि और कब 2 न्यू हमें इंटीजर देगा, जब ये हाफ ऑड इंटीजर्स होंगे। उस केस में भी हम देखेंगे कि हमें इस केस में आ जाएंगे लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। वो क्यों होंगे लीनियर इंडिपेंडेंट ऑड हाफ इंटीजर के केस में, बेसिस फंक्शंस ऑफ फर्स्ट काइंड, ये भी हम देखते हैं। सो हियर वी हैव बेसिस फंक्शन फॉर हाफ इंटीग्रल ऑर्डर। हाफ इंटीग्रल लेवल ऑर्डर का मतलब ये है कि +-1/2 +-3/2 +-5/2 एंड सो ऑन, राइट। मतलब 1/2 और J1/2 और J-1/2 के दरमियान क्या रिलेशन होगा, J3/2 J-3/2 J5/2 J-5/2। ये इस केस में हम इसको पर्टिकुलर स्टडी करते हैं। और मैंने ये जो आपको बताया था कि हम इसको स्टार्ट करते हैं 1/2 से,
कि J1/2 हमें क्या देता है, राइट। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि सिमिलर जो क्राइटेरिया वो 3/2 5/2 के लिए भी होल्ड करता है। सो हाफ इंटीग्रल ऑर्डर में इसने ऑड इसलिए नहीं रखा हुआ, मैंने ऑड इसलिए लिए हुए हैं कि अगर जब आप ऊपर इवन ले लेंगे ना, तो यहाँ पे भी मैंने ये कहा था अगर आप 4 ले लेंगे 6 ले लेंगे तो वो आपके पास ऑलरेडी इंटीजर आ जाएगा। और मैंने तो आपको बता दिया कि इंटीजर के केस में तो हम इस केस में आ जाएंगे। इसलिए ये जो हमने नॉन इंटीजर रखना है, तो नॉन इंटीजर सिर्फ तब आएंगे जब ऊपर जो ना वो ऑड इंटीजर्स आएंगे। इवन इंटीजर आ गए तो ये 2 पे डिविजिबल होगा, 2 पे डिविजिबल होकर वो आपको इंटीजर दे देगा। सो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। फॉर स्पेशल केस हम स्टार्ट करते हैं V1/2 से, एंड वी आर डिस्कसिंग दिस ऑड हाफ इंटीग्रल्स, ठीक है, ऑड हाफ इंटीजर्स। सो नेक्स्ट इफ़ यू कंसिडर न्यू इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 जब बेसल फंक्शन में इंसर्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे न्यू होगा वहाँ पे 1/2 आ जाएगा। एक न्यू यहाँ पे था, एक न्यू यहाँ पे था, तो आपके पास ये वाला फंक्शन ये वाला आ गया, राइट। 1 + 1/2 + 2n x/2 की + 2n + 1/2। सो सेकेंडली हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे गामा फंक्शन की, गामा ऑफ 1 + न्यू इज इक्वल टू न्यू टाइम्स गामा ऑफ न्यू। और सेकेंडली अब ये वाली चीज़ भी हम यूज़ करेंगे कि अगर आप 1/2 पे गामा फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास सॉल्व होने के बाद ऑलवेज √π आंसर देगा। ये क्यों देगा, ये आपको जस्ट आपको मेमोराइज़ कर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ना इसको सॉल्व करना इतना ईजी नहीं है। लेकिन ये आइडेंटिटी यूनिवर्सल जो है, इसलिए पता है कि 1/2 पे गामा फंक्शन √2π देता है, इसलिए आपको इसका डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये है कि नेक्स्ट हम अगर ये दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे तो सिंस 1 + 1/2 इज़ 3/2, राइट। तो अगर गामा 3/2 पे अप्लाई करेंगे तो बेसिकली 3/2 इज इक्वल टू 1 + 1/2। यहाँ पे 1 अगर न्यू की जगह 1/2 रखेंगे तो 1 + 1/2 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स गामा ऑफ 1/2। तो गामा ऑफ 1/2 इज √π, सो गामा ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स √π, राइट। और इस तरह अगर 5/2 पे अप्लाई करेंगे तो 1 + 3/2 आ जाएगा, और 3/2 टाइम्स गामा ऑफ 3/2, और फिर ये बैक ये वाली वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो 3/2 की पावर स्क्वायर √π आ जाएगा। इसके 7/2 के लिए आपके पास ये वाला वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसमें आप क्या करें, इसमें 2 की पावर 3 है, 4 और 2 अगर नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास बेसिकली ऊपर फैक्टोरियल पूरा हो जाएगा, राइट। तो ये 5 फैक्टोरियल ओवर 2 की पावर 5/2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह जब ये आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ तक आएंगे तो फिर ऊपर भी आप जो है ना वो 7 6 5 4 3 1 ऊपर भी 4 3 आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल 2 की पावर 7 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप जब कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये आपके पास जो जनरल वैल्यू आपके पास आएगी वो क्या आएगी। सो हेयर इज़, अगर आप जनरली 1 + 1/2 + n के लिए अप्लाई करेंगे, अगर n की वैल्यू 1 लेंगे तो आपके पास 1 + 3/2 आ जाएगा, और हम इस केस में आ जाएगा। अगर n 2 लेंगे तो 1 + 5/2, n 3 लेंगे तो 1/7/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 1/7/2 के लिए क्या आ रहा है, ऊपर 7 का फैक्टोरियल, नीचे 2 की पावर 7 और 3 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है कि n अगर आपके पास यहाँ पे 7 के लिए n की वैल्यू क्या है 5, तो 1 + 2/2 सॉरी n इज इक्वल टू 1 के लिए आपके पास क्या मिलेगा 1 + 1/2। n इज इक्वल टू 2 के लिए जो मिलेगा वो आपके पास बेसिकली ये 5/2 आएगा, ठीक है। और n इज इक्वल टू 3 के लिए 7/2। तो इसका मतलब आपके पास जब आप 5 के लिए 7/2, 5 के लिए 11/2, 3 के लिए 7/2। तो अब आपके पास n की वैल्यू जो कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2n + 1 हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर 7 आ रहा है तो 2 × 3 + 1 7, तो इसका मतलब है कि हमें n इज इक्वल टू 3 के लिए 7/2 मिल रहा है, राइट। अगर n इज इक्वल टू यहाँ पे अगर आप 2 रखते हैं तो 2 + 1/2 5/2, तो 2 × 2 + 1 5/2, तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसका मतलब इन जनरल जब आप n की वैल्यू वेरी करेंगे 1 2 3 तो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप इसको जनरलाइज करेंगे √π एज इट इज़ आ जाएगा एज ए कांस्टेंट, नीचे 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ऊपर 2n + 1 फैक्टोरियल 2 की पावर 2n + 1। सो यहाँ पे n की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पे फैक्टोरियल होगा, n = 3, n = 2, n = 1, राइट, और n = 0। तो इसका मतलब है कि जब हमने ये वाली वैल्यू गामा फंक्शन की यहाँ पे ऊपर इंसर्ट की तो आपके पास गामा फंक्शन ये वाला बन गया। अब इसको आपने जो ना अलजेब्राइक थोड़ी सी मैनिपुलेशन की ऊपर नीचे करके, ये फ्रैक्शंस चेंज करके, तो आपके पास उसकी फॉर्म ये वाली बन गई।
ये आप इजीली इसको एज होमवर्क कंसिडर कर सकते हैं। देखते हैं कि आप इसको कैसे इसमें कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 की पावर 2n+1/2 है। तो इसका आप मतलब है कि आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 1 - 1/2। तो 2n+1 - 1/2 हो जाएगा 2 + 1 1/2। तो फिर 2n+1 की पावर सेपरेट कर लेंगे, -1/2 की पावर वो इधर आके x की भी नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने ये वाला काम भी करना है, और बाकियों की जो अगर आप चेंज करेंगे तो आपके पास फाइनल फॉर्म ये आएगी। अगर आपको याद हो, मैक्लॉरेन सीरीज़ हमने स्टडी की थी कि ये वाला जो फंक्शन है बेसिकली ये मैक्लॉरेन सीरीज़ है आपके पास sin x की। तो इसका तो मतलब है कि ये वाला जो फंक्शन है ये आपके पास ये वाली सीरीज़ है, ये sin x को कन्वर्ज करेगी, इसका सम sin x आएगा। तो इसका मतलब है कि हम इस पूरे की जगह sin x रिप्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब है कि J1/2x जो J1/2x है, J1/2 ऑफ x विल बी इक्वल टू 2/πx इज इक्वल sin x। ये हमने रिपीट की थी 1/2 के लिए। अब यही वाली जो सारी की सारी अगर आप न्यू इज इक्वल टू -1/2 के लिए रिपीट करेंगे तो यहाँ पे जो सीरीज़ आएगी वो आपके पास cos x की आएगी। तो J -1/2x विल बी इक्वल टू 2/πx, और sin x की जगह पे यहाँ पे मैक्लॉरेन सीरीज़ जो आएगी वो cos x की आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि J1/2x में sin x है, J -1/2x में आपके पास cos x है। तो ये तो दोनों एक दूसरे के लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, ये तो प्रोपोर्शनल नहीं है। और ये रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने बताया आपको कि आपके पास यहाँ पे जब ऑड हाफ इंटीजर्स आ जाएंगे न्यू की जगह पे तो स्टिल आपके पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा। तो जब ये वाली पावर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी तो सिर्फ डिपेंडेंट कौन सी रह गई, जब आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, जब आपके पास पॉजिटिव इंटीजर या ज़ीरो होंगे तब ही आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट आएंगे, अदरवाइज़ ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। क्योंकि इस केस में भी इंटीजर आ रहा था लेकिन वो हमने कंप्यूटेशन से शो कर दिया कि वो स्टिल लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि बाकी सारे के सारे रैशनल्स इरेशनल्स के लिए जो है ना वो क्या कहते हैं, सॉरी सिर्फ इंटीजर्स के लिए, नॉन इंटीग्रल रैशनल्स और इरेशनल्स के लिए जो बाकी सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपके पास ऑलवेज जो फंक्शन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो कारस्पॉन्डिंग तो इसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ हमने, ये वाली रेपिटेशन हमने सिर्फ 1/2 और उसके लिए की हुई है, -1/2 के लिए। इसी तरह अगर आप 3/2 और -3/2 के पे करेंगे तो वो भी आपके पास इसी तरह एक दूसरे के लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। 5/2 और -5/2 भी आएंगे। सम टाइप्स यहाँ पे e की पावर x आ जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है sin x cos x ही आए। मैक्लॉरेन सीरीज़ e की पावर x की भी आ सकती है, ln1 + x की भी आ सकती है। तो मैंने जो मैक्लॉरेन सीरीज़ का आपको टेबल शो किया था वो आपको ऑलवेज पता होना चाहिए, बिकॉज वी स्टार्टेड विद x = 0। सो x = 0 टेलर सीरीज़ में ऑलवेज मैक्लॉरेन सीरीज़ होती है, सेंटर जो अगर चेंज कर दें 0 पे। तो इसका मतलब यहाँ पे मैक्लॉरेन सीरीज़ ऑलवेज आएगी जब आप व्हेन एवर यू डिस्कस स्पेशल फंक्शंस ऑफ हाफ इंटीग्रल ऑर्डर, एंड बाय डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस you will get a series which will be Maclaurin series of some elementary function such as sin x, cos x, ln1 + x, ln x, e की पावर x and something like that. So always ये एक दूसरे के लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। सो दैट इज़ द रीज़न कि हाफ ऑर्डर इंटीग्रल जो है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जब ये सोल्यूशन, इसका तो ये मतलब हुआ कि C1j न्यू ऑफ x + C2j न्यू - न्यू ऑफ x ये ऑलवेज सोल्यूशन होगा आपकी बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का, एज लॉन्ग एज न्यू डज नॉट बिलोंग टू जी, क्योंकि ज़ीरो के लिए भी सेम देते हैं और जी पॉजिटिव के लिए भी अभी तक हमने कोई इसका क्राइटेरिया नहीं देखा। हो सकता है सेम ना हो, उसका सेम हो, लेकिन यह है कि ये अगर हमें कन्फर्म हो गया है कि अगर इसके अलावा जो भी वैल्यूज़ होंगी उसके लिए हमारे पास बेसल फंक्शन ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, सुपरपोजिशन विल बी अप्लाइड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड, एंड दिस विल गिव अस अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ ए बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन। ठीक है जी, क्योंकि ये बेसिस बनाएंगे। सो नेक्स्ट वी डिस्कस सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू इट। So let us solve this particular example. So Bessel's equation for order 1/2. So by identifying v new square is equal to 1/4, अब अपनी Bessel's, क्योंकि आपकी बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन में न्यू स्क्वायर इन्वॉल्व होता है, राइट। तो कॉरस्पॉन्डिंग न्यू की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। वी कैन सी दैट फ्रॉम 9 दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑन 0 इन्फिनिटी, ये उसने इंटरवल ठीक नहीं दिया हुआ है। बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि ये बेसिकली जो है ये आप सिर्फ और सिर्फ 0 को एक्सक्लूड कर दें, -∞ to 0 यूनियन 0 to ∞। तो ये उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा। सिर्फ 0 पे ये वाली जो इक्वेशन है, जो सोल्यूशन से थे मैंने आपको कंस्ट्रक्ट किए थे
बेसल फंक्शंस ऑफ फर्स्ट काइंड, वो सिर्फ x इक्वल टू 0 पे वो जो है वो डाइवर्ज कर रहे थे, अदरवाइज़ वो ऑलवेज कन्वर्ज करते थे बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट। सो ये उसने सिर्फ पॉजिटिव के लिए लिया हुआ है, क्योंकि नॉर्मली हम पॉजिटिव एक्स के लिए ही कंसिडर करते हैं, लेकिन यह कि ओवरऑल अगर आप कंसिडर करें तो इस इंटरवल में आपकी ये वाली जो सोल्यूशन है कारस्पोंडिंग J1/2 और J-1/2 ये करेंगे कन्वर्ज। सो अभी हमने देखा था कि न्यू की वैल्यू 1/2 है। 1/2 के लिए हमने देखा कि हाफ ऑर्डर इंटीग्रल के केस में हाफ ऑर्डर इंटीग्रल के केस में आपके पास ये जो दोनों फंक्शन थे ये एक दूसरे के लीनियर इंडिपेंडेंट थे। लीनियर इंडिपेंडेंट तो बेसिस बनाएंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ये उसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आप इस न्यू की वैल्यू वेरी करती रहेंगे एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट एन इंटीजर, तो आपके पास ये ऑलवेज जो है, क्योंकि इंटीजर के लिए वो अभी हमने केस डिस्कस नहीं किया कि इंटीजर के लिए हो सकता है कि वो एक दूसरे के लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन यह है कि एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट एन इंटीजर, न्यू की हर वैल्यू के लिए आप कारस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन इन बेसल फंक्शंस की टर्म में लिख सकते हैं, वेयर बेसल फंक्शंस आर डिफाइंड जस्ट लाइक बिफोर वी टोल्ड यू, राइट। सो नेक्स्ट हियर कम्स कि आपके पास जब न्यू की वैल्यू जो है वो इंटीजर हो जाए तो फिर क्या केस है। सो नेक्स्ट व्हेन न्यू इज इक्वल टू m इंटीजर, तो जाहिर बात है क्योंकि न्यू जो है वो नॉन नेगेटिव था, तो आप यहाँ पे भी आपके पास ये नॉन नेगेटिव हो सकता है, m 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो इसलिए हम जस्ट कह देते हैं रादर दैन कंसिडरिंग g प्लस यूनियन 0, हम ये कह देते हैं कि व्हेन एवर न्यू इज़ इंटीजर, तो कारस्पोंडिंग सोल्यूशन जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो सकते हैं, तो हो सकता है वो बेसिस ना बनाएं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं फिर आपको पूरा सोल्यूशन देगा। तो इन दैट केस वी हैव टू इंट्रोड्यूस बेसिस फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, जिनकी हम डेरिवेशंस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी नॉन ट्रिवियल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो वो हम नहीं उसकी डेरिवेशन देखेंगे और ना हम ये देखेंगे कि वो कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाते हैं, लेकिन ये है कि जस्ट आपको पता होना चाहिए कि बेसल फंक्शंस ऑफ सेकंड काइंड क्या है और फिर जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा। सो हियर वी हैव द बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। सो व्हेनेवर न्यू इज़ एक्चुअली नॉट एन इंटीजर, तो हमने देखा था कि हमें वो जो ये इसको आप ना कंसिडर करें, क्योंकि जब v इंटीजर नहीं था तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाते थे, राइट। लेकिन जब v इंटीजर नहीं हो, जब v इंटीजर होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर आप बेसल फंक्शन को सेकंड काइंड जो है ना वो ये वाला है कि वो लीनियर कम्बिनेशन है बेसिकली बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड और उसके नेगेटिव का, ठीक है। अगर आप इस बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड को जो है वो इस तरह डिफ़ाइन करेंगे, बेसल फंक्शन को फर्स्ट काइंड को यूज़ करके आप बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड डिफ़ाइन करते हैं, और फिर ये है कि ये थ्योरम ये कहता है कि जो बेसल इक्वेशन अगर आप इस j माइनस v की जगह पे ये बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड रिप्लेस कर दें तो आपके पास ये आपको जनरल सोल्यूशन दे देगा। ये दोनों फिर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x एंड x ग्रेटर दैन 0, चूँकि आप नॉर्मली x ग्रेटर दैन 0 के लिए कंसिडर करते हैं। लेकिन ये है कि आपके पास ए जनरल सोल्यूशन ऑफ बेसल थ्योरम ये कहता है जनरल सोल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, तो हमने ना इसकी डेरिवेशन किया ना हम इसका प्रूफ करेंगे कि ये क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये है कि अगर आपको इसका पता हो और बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड के फार्मूले का पता हो, तो आप जो है ना किसी भी बेसल इक्वेशन के किसी भी ऑर्डर का फॉर एवरी वैल्यू ऑफ न्यू उसका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल के इंटीजर पावर के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमने नॉन इंटीग्रल 1/2 के लिए तो की है। सो इफ़ वी कंसीडर न्यू इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 3 इज़ नॉट एन इंटीजर। इस केस में आपके पास J3 और Y3 जो होंगे ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे बाय यूजिंग दिस थ्योरम जो हमें अभी ने देखा है। तो ये जो है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये ऑलवेज आपको सोल्यूशन देगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपने बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड को स्टडी कर लिया तो आपको बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस थ्योरम। सो बाय आइडेंटिफाइंग न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड न्यू इज इक्वल टू 3 वी सी फ्रॉम 11 दैट 11 ये वाली है कि द सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस काइंड x square y double prime plus xy prime plus x square minus 9 times y is equal to 0. This is actually our 11 is y1 c1 g3 plus c3 y3, where J3 is the Bessel's function of first kind of order 3 and Bessel's function of second order function of order
Bessel function of order 3, this is actually second type, right? This is first type order 3, this is second type order 3. वो आप इसमें 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 3 और -3 आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे और कारस्पोंडिंग आपको फिर ये जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n. अब हमने ये देख लिया कि बेसल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि कब इंटीजर होगा कब नहीं इंटीजर होगा, वो हमने स्टडी कर लिया हुआ है कि अगर तो आपके पास नॉन इंटीग्रल वैल्यू आ गई तो नॉन इंटीग्रल वैल्यू के लिए यही सोल्यूशन काफ़ी होगा. आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके कारस्पोंडिंग ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. लेकिन इंटीजर्स आ गए तो ये आपके पास जो है ना आपको वाई उसके कारस्पोंडिंग सेकंड, क्योंकि ये दो आपने कैलकुलेट किए होंगे तो उन आपने जस्ट कॉज और साइन से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके उसको सिर्फ माइनस ये करके आपको उसके कारस्पोंडिंग बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड मिल जाएगा. फिर आप उसको ना जनरल सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर देंगे. ऑल्दो ये एक्स वी की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, लेकिन अगर तो वो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 5/2 इस तरह की अगर वैल्यूज़ हैं तो उस केस में, या फॉर एग्जाम्पल 9/5 इस तरह की भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो उस केस में आप ऑलवेज यहाँ तक ही रहेंगे तो इनफ है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन. ऑल्दो थ्योरम ये इंश्योर करवाता है कि न्यू की हर वैल्यू के लिए ये ट्रू है, ये जनरल सोल्यूशन होगा. लेकिन जब अगर आप उसका कारस्पोंडिंग वाई वी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जे वी और जे माइनस वी ऑलरेडी हैं. तो अगर जे वी और जे माइनस वी ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किए हुए हैं और वी की जो वैल्यू है वो कोई नॉन इंटीजर है, तो आप क्यों ना कि आप इसी को जनरल सोल्यूशन कह दें. आप कह दें कि सिंस न्यू इज़ नॉट एन इंटीजर, दिस बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जे फॉर एग्जाम्पल 3/9 5/9 j 5/9 and j minus 5/9 are actually always linearly independent. So they are linearly independent, so that means this is actually will form a solution. तो अगर तो वो इंटीजर आ जाएगा फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रल के लिए ये दोनों ना लीनियरली डिपेंडेंट हो सकते हैं आपके पास. So that was that. So next we will see some differential equations which are actually, यहाँ तक आपका differential equation का Bessel's differential equation का solution complete हो चुका है. So as long as you know Bessel's function of first kind and second kind, you can always construct solution of any Bessel's differential equation for any non-negative real number जो है न्यू की हर ऑर्डर के लिए, as long as न्यू इज़ non-negative real number, right? तो आप उसकी हर वैल्यू के लिए जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं. इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने जनरल डिफाइन की थी, x² y डबल प्राइम प्लस xy प्राइम प्लस x² माइनस न्यू स्क्वायर टाइम्स y इज इक्वल टू 0. ओके, so I think that is enough for this lecture, and in the next lecture, lecture 22, we'll continue from here. We have completed the solution of Bessel's differential equation so far. अब इसके बाद हमने Bessel equation of first order और हमने कुछ ऐसी differential equations देखनी है जिस तरह हमने सेकंड चैप्टर में देखा था separable differential equation, रिडक्शन टू सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, रिडक्शन टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट तो नहीं होंगी जिनको हम लेकिन हम उनको बाई सब्स्टिट्यूशन जो है वो एग्जैक्ट बना सकते हैं. जो सेपरेबल तो नहीं होंगी लेकिन उनको बाई सब्स्टिट्यूशन सेपरेबल बना सकते हैं. इसी तरह अब हम ऐसी मॉडिफाइड बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशंस देखेंगे जो मेनली बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रक्चर को तो फॉलो नहीं करेंगे x² माइनस न्यू स्क्वायर के कारस्पॉन्डिंग, लेकिन ये है कि आप उसको पर्टिकुलर अगर आप उसमें पैरामीटर की वैल्यू इंसर्ट करें, सब्स्टिट्यूशंस करें, तो आप उनको रिड्यूस कर सकते हैं बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशंस. सो वंस इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू बेसेल्स differential equation, then you can easily calculate the solution, right? So next में हम वो वाली सारी जो देखेंगे differential equation which are reduced to Bessel's differential equations, और फिर हम इनकी Bessel's function of first and second kind की कुछ property study करेंगे. फिर हम modified Bessel's function देखेंगे और spherical Bessel's function देखेंगे. तो next lecture will be all about Bessel's functions and modified Bessel's differential equations. So that is all for now, and I'll see you in the next lecture. Thank you very much.